Bismillahirrahmanirrahim. Good evening and Assalamu alaikum, my dear students and my friends. I am Asadullah Ghori, and today we will discuss O level mathematics syllabus D 4024 code. And my topic is inverse of the matrix or inverse of a matrix. So let's see. So, beta, first of all, if I consider a matrix like A equals to in rectangle in square form 1, 2, 3, and minus 4. So we can find inverse of this matrix. Before discussing inverse, I will discuss something like if sine of theta is equal to let's suppose p, then theta must be equal to p over sine, right? And you can write it as theta is equal to sine inverse of p. Therefore, you may say कि जनाब 1 over x must be equals to x raised to the power minus 1, that is inverse of x. So reciprocal of any value is called inverse of that value in terms of equation. जैसे साइन हो गया वगैरह, तो इसी तरह से मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालें तो इन्वर्स ऑफ ए का मतलब क्या हो गया, दैट इज 1 over a, एंड 1 over a मीन्स a raised to the power minus 1, दैट इज इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. ठीक है, तो इन्वर्स निकालने के लिए दो चीज़ों पर डिपेंड करते हैं हम, एक तो उसका डिटर्मिनेंट और एक उसका ट्रांसपोज. तो देखो जरा क्या होता है. If a is equal to 1, 2, 3 and minus 4, then we will find inverse of this matrix by this method. So first of all, we will consider above matrix and we switch these two values. Exchange कर देंगे, -4 उधर चला जाएगा, 1 इधर आ जाएगा. तो ये आ गया -4, मीन्स इस डायगनल की बात कर रहा हूँ मैं, राइट. और 1 इसकी जगह को रिप्लेस करेगा, स्विच कर जाएंगे, एक दूसरे को एक्सचेंज करेंगे. बट ये 2 और 3 एक दूसरे को एक्सचेंज नहीं करते. ये 2 और 3 एक दूसरे का साइन चेंज नहीं करते. ये 2 और 3 आपस में नहीं कुछ करते, बल्कि अपना अपना साइन चेंज करते हैं. तो देखो यहाँ पर 2 और 3 प्लस प्लस है, +2 एंड +3, तो ये जाएगा -2 एंड -3. तो कभी कभी ये होता है जनाब, ये दोनों वैल्यू स्विच करती हैं और ये दोनों साइन स्विच करते हैं. तो साइन स्विच नहीं करते, साइन चेंज हो जाता है. देखो अभी दोनों प्लस थे तो दोनों माइनस हो गए. अब वही होता है कि कभी एक प्लस एक माइनस हो गया तो जनाब प्लस वहाँ चला गया, माइनस आ गया, ऐसा कुछ नहीं हो रहा. वो इटसेल्फ अपनी साइन चेंज कर रहा है, राइट. So first of all, we switch these two values and then we change sign of 2. If 2 is positive, then we take -2. If 3 is minus, so then we take plus. ठीक है, +3. So we do change sign of the values and we switch these two values. After that, डिटर्मिनेंट में क्या होता है, डिटर्मिनेंट में ये होता है कि आपने एक ब्रैकेट लगाया. बेसिकली ब्रैकेट मैट्रिक्स नहीं है तो मैं छोटा कर देता हूँ. देन यू विल मल्टीप्लाई, नॉट you will not consider this matrix, but you will consider this matrix. You will multiply this one by this -4, 1 -4. Then you will place minus sign over here, and after that you will multiply these two values. 3 multiplied by 2. बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ये करते हैं कि बजाय इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने के इसको कर देते हैं. तो डिटर्मिनेंट इससे नहीं निकलता, इससे निकलता है, राइट. तो इन दोनों को यानी फर्स्ट डायगोनल माइनस सेकंड डायगोनल प्रोडक्ट, फर्स्ट डायगोनल प्रोडक्ट माइनस सेकंड डायगोनल प्रोडक्ट. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. A inverse equals to -4, -3, -2 and 1, राइट. और डोमिनेटिव हो जाता है. डिटर्मिनेंट में बताता हूँ, हम इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई, हम इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, देन वी मल्टीप्लाई दिस डायगोनल एंड देन वी सब्ट्रैक्ट फर्स्ट डायगोनल सेकंड डायगोनल फ्रॉम फर्स्ट डायगोनल. सो 1 टाइम्स -4 -3 टाइम्स 2. ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर करता हूँ. -4 -6, डेट इज -4 -2 -3 1 and -10, that means 1 over -10. So 1 over -10, bracket open, -4 -3 -2 and -1 is the inverse of the matrix. You may also write it as A inverse equals to -4 over -10, -2 over -10 and -10 over -3 over -10 and 1 over -10, right. ऐसे भी आप लिख सकते हो इसको. And finally 2 over 5 and 1 over 5, right, and 3 over 10 and 1 over 10 with minus sign. It's a simplified form of the matrix, inverse matrix. ठीक है, ये मैट्रिक्स आ गया आपके पास.
So very important topic, but remember, most of the time we find inverse of the square matrix. Most of the times in our syllabus we find inverse of the square matrix. Square matrix means which has two rows and two column, two rows and two column. तो आपके कोर्स में जो इन्वर्स आता है वो टू रो टू कॉलम वाला आता है. वैसे तो इससे ज़्यादा 3 by 3 भी होता है और भी होता है, बट आपके कोर्स में स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 2 by 2 जो है उसका इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं, राइट. ये तो एक बात हो गई. लेकिन अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसको ज़रा तुम सुनना, वो तुम्हारे बड़े काम आएगी. बस फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ कॉपी डाउन दिस पार्ट. हमारे स्टूडेंट्स कॉपी कर रहे हैं, साथ साथ में आप जो एक काम कर सकते हो कि आप इसका एक अच्छा प्लीज़ हैव अ ग्लैंस ऑफ सच टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम योर बुक्स एंड देन यू कैन सॉल्व योर क्वेश्चन इजीली. और आपकी जो क्वेरीज हैं और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो मैं इंक्वायर ऑफ मी, आप पूछ सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो और टॉपिक भी बता सकते हैं. तो फिर हम देखेंगे अगर हमें जैसे फिजिबल होगा तो फिर इंशाल्लाह उन टॉपिक्स पे भी काम करेंगे आपके साथ मिलकर, राइट. जी बेटा, तो कंप्लीट हो गया ये, इसको आगे लेके चलो. X is a matrix with the values of A, B, minus C and D. Right? A formula, a concept. Then we can obtain inverse of this matrix by making the transpose of the matrix. इसका ट्रांसपोज बनाते हैं, बट वो वर्ड मैं तुम्हारे लिए अभी ज़्यादा यूज़ करना नहीं चाह रहा. करते क्या है, सिर्फ ये करते हैं कि इनको स्विच कर देते हैं. डी ए माइनस बी प्लस सी, एक काम हो गया, राइट. एंड आफ्टर दैट वी डिवाइड दिस मैट्रिक्स बाय DET of matrix A. DET means determinant of X. So how do we explain determinant? Let's say DET of matrix X is equal to A multiplied by D minus B multiplied by minus C, right? So determinant means okay, you will consider two diagonals of the matrix. Diagonal number one, diagonal means if you consider a rectangle or a square, so then you will find two diagonals. Diagonal number one, diagonal number two. Consider this as diagonal number one and consider this as diagonal number two, right? So over here you have four position ना, चार वैल्यूज तुम्हारे पास यहाँ पे पड़ी, मैं इसको मिटा के लिख दूँ. Let's suppose A, B, D and minus C. So first of all multiply this A by this D, that is diagonal number one. A multiplied by D, right? And then multiply this minus C by B, and subtract 1 from diagonal number 2, 2 from diagonal number 1. Diagonal number 1 will come first, and then diagonal number 2 will come second, and then you will set minus in between these two. Okay? It's a determinant of the matrix, right? So now finally you have AD according to this question plus BC हो सकता है, we have no, but हम कर सकते हैं. तो इसको लिखते कैसे हैं? DET of A vertical line, see vertical two lines. Usually we use vertical lines for the determinants. ठीक है, determinant को vertical line से भी लिख सकते हो, ना लिखो तो भी कोई 12 लिख लो तो अच्छा है. And then we can solve matrix. So again we have a question. Are you getting my point, beta? So determinant means first of all we will find transpose of a matrix, means we exchange these two values, means first diagonal, and then second diagonal we change sign of the matrix. We will set answer of this changing over here, and after that we will again consider this matrix. Then we multiply first diagonals and then second diagonals, and we put first diagonal first, and then we set minus between first and second diagonals, right? सो डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स यहाँ मैंने लिखा है, इसी को आगे लेकर चल रहा हूँ, वो मैंने यहाँ पर कर दिया. सो कैन वी राइट दिस एज डी सी माइनस बी एंड ए डिवाइडेड बाय ए डी प्लस बी सी. गॉट इट? नाउ रिमेंबर determinant of, over here we have x, so then we consider this as x करेंगे ना, इसे x लिखेंगे इसे. determinant of x must not be equals to 0, must not be equals to 0. If the determinant of any matrix is 0, then we cannot obtain inverse of that matrix. अगर किसी मैट्रिक्स का determinant 0 हो जाएगा, then we say that matrix is called singular matrix. ठीक है. So if you divide any matrix by 0, you cannot obtain answer. Why? See, you have number 7, right? Can you divide this 7 by 0? Yes, you can solve this question in your calculator.
सॉल्व करो, डिवाइड दिस 7 बाय 0, मैथ एरर, दैट इज इन्फिनिटी। ओके, नाउ सेकंड, फंक्शन ऑफ एक्स, आपसे कह रहा हूँ बेटा, फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 ओवर एक्स माइनस 3। डिड यू सॉल्व सच क्वेश्चन इन योर एग्जाम, इन योर पेपर? आपने कभी ऐसे क्वेश्चन तो फंक्शन के तो किए होंगे, आपने तो फंक्शन नहीं किया, जहां भी ऐसा आपने किया है एडवांस में किया। ओके फाइन, बहुत ही अच्छी बात है। अगर तो कोई ऐसा क्वेश्चन लिखा होता है और कभी ऐसा लिखा होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, इसके आगे कुछ नहीं लिखा होगा। अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है या ऐसा कुछ लिखा हुआ है एफ ऑफ एच इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 ओवर 2x प्लस 1, या अगर ऐसा लिखा हुआ है एफ ऑफ जी, नॉट एच बट एच, अब तो एच हो गया ना, ये इज इक्वल टू जी प्लस 4 ओवर 2g माइनस 2, तो इन तीनों क्वेश्चन के आगे एक चीज लिखी होती है, बताओ क्या? मैं बता देता हूँ, x must not be equal to 3 because function is not defined if we take x as 3. If we put 3 over here, 3 minus 3 0, not possible. So इसमें क्या लिखा होगा? h must not be equal to minus 1 over 2. अगर माइनस 1 over 2 पुट कर दोगे तो गलत हो जाएगा। इसमें क्या लिखा होगा बताओ? g must not be equal to 1, 2 तो उधर चले आएगा ना, 2g minus 2 equals to 0, 2g is equal to 2 and g is equal to 2 over 2, so g is equal to 1. If we take g as 1, so we find 0 as determinant as the denominator of the function, so denominator 0 जाएगा तो function का इनवर्स नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी तो इसका ये डिनोमिनेटर ही कुछ आ रहा है ना, इस तरह की बात है ना। चलो फाइन, नहीं आ रहा ना यहाँ पे डिनोमिनेटर, ओके फाइन, तो जब तुम इसको यहाँ पर लाओगे, डी के पास डिवाइड करोगे, सी से डिवाइड करोगे, माइनस बी से डिवाइड करोगे, ए से डिवाइड करोगे, जो भी पिछले क्वेश्चन में तुमने किया, तो हर वैल्यू को डिवाइड कर रहा है ना, तो अगर डिवाइड करने वाली वैल्यू खुद इटसेल्फ 0 हो जाएगी तो फिर आंसर कैसे आएगा? नहीं आएगा ना। पक्की होगी बात? परफेक्ट, ये बात मुझे तुम्हें समझानी थी। अब मैं ज़रा तुम्हें इसको कुछ और तरह समझाता हूँ। वो ये कहता है, पहले इसको मिटा देता हूँ, आपने कॉपी कर लिया इसे, कर रहे हो? ओके फाइन, ये देखो वही क्या कहता है, वो तुमसे 2-3 बातें कर सकता है। if a equals to 2, 4, 8 and k, find the value of k if a inverse is impossible, not possible, ठीक है। क्या करें भाई? if the inverse of the matrix is not possible, then determinant of matrix A must be equal to 0. We have only one condition. अगर तो किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 है तो हम उसका इन्वर्स नहीं निकाल सकते, एंड सच मैट्रिसेस आर रिगार्डेड एज सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब क्या करेंगे भाई बताओ? इसका मतलब यही हो गया ना कि 2 टाइम्स के माइनस 8 times of 4 first diagonal minus and then second diagonal must be equal to 0 because inverse is not possible. Then 2k minus 32 equals to 0, then 2k is equal to 32 and k is equal to 16. So if the value of k is 16, then we cannot obtain inverse of that matrix. Simple as that. आगे बात समझ, आसान सी बात थी। अगर ये नहीं लिखा होगा तो क्या लिखा होगा? if the matrix is singular, if the matrix is a singular matrix, then find the value of k. It means again determinant is 0 and inverse is not possible. तो अब वर्डिंग जितनी भी चेंज कर ले, बट आज के बाद तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, राइट। अगर यूं आ जाए क्या, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ p इज इक्वल टू 8, फाइंड q। अब तुम कहोगे सर q कहाँ पर है और p कहाँ पर है, तो मैं लिख देता हूँ। लेट सपोज p इज इक्वल टू q माइनस 8, 4 and 7। अब क्या करूँ जी बेटा? if the determinant of p is equal to 8, find the value of q। क्या करूं? 7 of q, that is det of p, minus 8 times 4, right, must be equal to
determinant of P is equal to 8 na, equals to 8. Though we can find inverse of this matrix, but wording is changed कि जनाब if the determinant of matrix is 8, find the value of P. क्या करें भाई? 7P minus minus plus अच्छा 7P लिख दिया, ठीक है, इक्वल्स टू 8 एंड 7P इज इक्वल टू, सॉरी यार ये मुझसे बस होता ही रहता है, एंड 7Q इक्वल्स टू 8 minus 32 एंड कितना आएगा 8 minus 32 24 with minus sign over 7. Q is equal to इतना, Q is equal to minus 24 upon 7. सिंपल इज डेट. ना काटो तो डेसिमल में लो, आ सकता है डेसिमल, फ्रैक्शन में भी चलेगा. ओके इतना लिख देते हैं, बाकी चल जाएगा. सो द वैल्यू ऑफ Q इज इक्वल टू इतना. So sometimes question comes कि like if the determinant of matrix is इतना, or if the inverse is not possible, if the matrix is inverse, if the matrix is a singular matrix, then find the value of P, find the value of Q, find the value of R and फलाना फलाना फलाना, and also find value of A. तो वो A अगर आना होगा या B का आना होगा तो इनवर्स तो तुम निकाल लोगे, राइट, और अब तुम ये डिटर्मिनेंट भी निकाल लोगे, सारा काम खत्म हो गया इनवर्स का. इनवर्स कंप्लीट हो गया, लेकिन एक बात और बाकी है, वो भी जरा कर लूँ तुमसे. तो ये मैं उठाऊँ तो फिर मैं तुमसे बात करूँ. एक आखिरी बात, अगर तुम कॉपी कर लो पहले, फिर इसको बात करते हैं. आप लोग सब कॉपी कर लो. आपको बेटा इसको बिल्कुल क्लियर हो गई बात सारी की सारी? कुछ पूछना तुमने? नहीं, आपको सारी बात क्लियर हो गई. लेकिन अभी मैं दो बातें और बड़े काम की बता रहा हूँ. अब मैं जरा थोड़ा सा प्रोडक्ट की तरफ जा रहा हूँ दोबारा, जो हमने मल्टीप्लाई किया था दो मैट्रिसेस को, उस पर जरा बात कर लेते हैं. देखो इफ A इक्वल्स टू 1 2 3 4, राइट बेटा आपसे भी, एंड B इक्वल्स टू 3 4 and 5 and 6, right? Find A B part number 1, part 2 and BA. Find AB and AB and BA. अब प्रॉब्लम हमारे साथ एक है, वो क्या? इफ यू मल्टीप्लाई 2 by 6 or 6 by 2, we get same number 12 and 12. So can we find same result? We have to check करके देख लेते हैं, ठीक है. So first of all we consider A times B. आओ ज़रा बताओ मुझे, AB is equal to 1 2 3 4 into 3 4 5 6. ऐसे ही करेंगे ना, ए को पहले लिखेंगे बी को बाद में, राइट. एंड देन अगेन वी कंसीडर रो एंड देन कॉलम. याद आ गया, लास्ट क्लास में किया था. तो कैसे करें भाई इसे, बोलो ज़रा. 1 into 3 plus 2 into 5, 1 into 4 plus 2 into 6, 3 multiplied by 3 plus 4 multiplied by 5 and 3 multiplied by 4 plus 4 multiplied by 6. सही है भाई, सही क्या सारा, पक्की बात? देख लो भाई, हो सकता है मैं गलत कर दिया हूँ भाई. ठीक है सारा काम, ओके फाइन. सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 3 plus 10, 9 plus 20, 4 plus 12 and plus 24. Finally we have 13 and then 16 and then 29 and then 36. Am I right? यही आ रहा है, ठीक है भाई, यही आ रहा है ना. नाउ वी सॉल्व दिस पार्ट इन डिफरेंट वे. B टाइम्स A, B इंटू A. देखो ज़रा क्या होगा, इसको देखो क्या करें भाई. इसमें पहले B लिखें, 3 5 4 6 एंड देन 1 2 3 and 4 करके देख लेते ना. यस बेटा बताओ. 3 multiplied by 1 plus 4 multiplied by 3, 3 multiplied by 2 plus 4 multiplied by 4, 5 times 1 plus 6 times 3, 5 times 2 plus 6 times, plus 6 times, sorry 5 times 3 plus 6 times 4 है ना. एक्जैक्टली सिंप्लीफाई करते हैं. 3 plus 1 2, 5 plus 18 and 6 plus 16, 15 plus 24. जी बेटा रिजल्ट बताओ. 15
22, 23, 39। वो देखो क्या लिखा हुआ है 13, 16, 29 एंड 36। ये क्या लिखा हुआ है 15, 22, 23 एंड 34। इट मीन्स कि ये वाला रूल नहीं अप्लाई होगा। सो वी से कि जनाब ए इनवर्स बी मस्ट नॉट बी इक्वल टू बी इनवर्स ए। ये एक बात आ गई, आज आपको एक पता चल गया। ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था। फिर इसको कॉपी करो, फिर मैं तुमसे दो बातें और डिस्कस करूंगा। ये सारी बातें बड़े काम की, एक एक चीज से आपके एक एक कॉन्सेप्ट निकल रहे होता है, पर आप बहुत काम करें। अभी हमने इसकी एप्लीकेशंस पर भी डिस्कस करना है कि एप्लीकेशंस क्या होती हैं, कैसे हम मैट्रिसेस अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं। मतलब व्हाई डू वी रीड मैट्रिसेस, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस मैट्रिक्स और मैट्रिसेस इन प्रैक्टिकल लाइफ। तो मैं तुम्हें बताऊंगा, देखो कहीं ना कहीं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 4 में कि जी वी कैन गेट एडवांटेज ऑफ द मैट्रिसेस इन आवर डेली लाइफ। कहीं ना कहीं हमें इसका एडवांटेज बहुत है, लेकिन पहले इसको करो फिर बात करते हैं। ये तुम्हारे बेस्ट नोट्स हैं, इससे अच्छा तुम्हें इसके इक्वल मिल जाएगा काम, बट इतनी सारी चीज़ें एक साथ इनको जमा करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। तो ये एक प्रिसाइज टाइप की चीज़ हो जाती है, इनको नोट करो। और स्पेशली जो लेक्चर्स आपके रिकॉर्ड हो रहे हैं, जैसे अब ये है और आ जाएगा थोड़े दिनों में, इन लेक्चर्स को आप लोग 2-3 दफ़ा देख लिया करो, तो आपकी चीज़ें रिव्यू हो जाती हैं, बहुत एडवांटेज मिलता है आप सबको ना। ये कर लो कि फाइन, लेकिन मैं समझाऊंगा वो उसी वक्त जब तुम वो कर लोगे तो फिर बात अच्छी लगेगी। एनीवे मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ तक, राइट। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने तुमसे कभी ये बात डिस्कस की थी जो मैं अब लिखने जा रहा हूँ? आई इज इक्वल टू 1001, कहीं स्टार्टिंग में बात आई थी? आइडेंटिकल मैट्रिक्स, आइडेंटिकल मैट्रिक्स 1001, वन डायगोनल इज 1 एंड द सेकंड डायगोनल इज 0। ठीक है ना? यहाँ तक बात क्लियर हो गई। इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 1 इंटू 1, 0 इंटू 1 ही रहेगा ना, 1 रहेगा। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, जरा देखो, इफ i इज इक्वल टू 1001, जो कि होता है, लिखने की जरूरत तो नहीं है, i 22 कहलाता है, ये मीन्स 2 रोज इन 2 कॉलम, एंड a इज इक्वल टू 1436, लेट्स सपोज। ठीक है, शो दैट a टाइम्स i इज इक्वल टू i टाइम्स a इज इक्वल टू a। अजीब सी बात हो गई ना, आई को बाद में रखो, ए को पहले रखो, आई को पहले रखो, ए को बाद में रखो, मल्टीप्लाई करो, ए ही आएगा। देख, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ए इंटू आई 1436 1001, और भी मल्टीप्लाई करें, 1 टाइम्स 1 1, 4 इंटू 0 0, देन 1 इंटू 0 0, 4 इंटू 1 4, 3 इंटू 1 3, 6 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0, 6 इंटू 1 6। सिंप्लीफाई करो, क्या आ रहा है? 1 3 4 एंड 6, एंड एक्चुअली इट्स द सेम वैल्यू ऑफ ए इज 1436 एंड इट्स सेम वैल्यू 1 4 3 एंड 6। अब क्या रह गया भाई? सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट क्या था? आई इंटू ए, आई इंटू ए भी करके देख लेते हैं भाई, इसमें क्या है ना, ये भी कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है भाई। 1001 एंड 1 4 3 एंड 6, यस बेटा बोलो। 1 इंटू 1 0 इंटू 3 0, 1 इंटू 4 4, 0 इंटू 6 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 3 3, 0 इंटू 4 0, 1 इंटू 6 6 is equal to 1 3 4 and 6। now please take a 1 4 3 and 6। I think concept is very clear। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब इससे आगे की क्या बात बताऊंगा इंशाल्लाह, एप्लीकेशंस ऑफ द मैट्रिसेस। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह इन नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस एप्लीकेशंस ऑफ द मैट्रिसेस, एंड फिर बात आगे चलेगी इंशाल्लाह। तो आपकी जो भी कमेंट्स हो आप दे सकते हैं, अपनी राय बता सकते हैं और अपने टॉपिक्स भी बता सकते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।